Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, students, today is 2nd of November 2020, and on Wednesday. And students, our lesson is lesson 6, retirement of a partner. And students, today we solve a new question number 39. And student, this is the last question of this lesson. Okay, so this is the complete question and very good question and important question. So, student, question number 39 is X, Y, and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. Balance sheet of the firm as at 31 March 2020 was as follows. Creditor, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, capitals XYZ, and cash at bank, debtors, provisions, stock, investment, patents, machinery, goodwill, advertisement, expenditure, and informations are Z retired on 1st April 2020 on the following terms. First is goodwill of the firm is to be valued at rupees 34,800. Value of patents is to be reduced by 20% and that of machinery to 90%. Provision for doubtful debts is to be at the rate 6% on debtors. Z took the investment at market value. Liability for workman compensation to the extent of rupees 750 is to be created. A liability of rupees 4,000 included in creditors is not to be paid. Amount due to Z to be paid as follows: rupees 5067 immediately, 50% of the balance within 1 year, and balance by a draft for 3 months. Give necessary journal entries for the treatment of goodwill, prepare revaluation account, capital account, and balance sheet of the new firm. Okay, student, this is the complete question. And in this question, we prepare. Firstly, we pass journal entry. We will pass journal entry, then revaluation account, partners capital account, and balance sheet. Okay, student. So now we solve this question. So, student, firstly, question number 39. And student, firstly, we pass the journal entries. You know very well in this question, given information is goodwill of the firm is valued 34,800 and retired partner is Z and ratio of Z is 1/6. 3 plus 2 plus 1, 1/6. Okay. So firstly, student, you know very well, and in this question, goodwill is already appeared in the books of account rupees 6,000. And you know very well, if goodwill is already appeared in the books of account, so firstly, we will write off. हम उसे write off करेंगे goodwill को. Okay. So write off की entry क्या होती है? You know very well. Old partners capital account debit to goodwill account. Okay, so X capital account debit, Y's capital account debit, Z's capital account debit to goodwill account. एंड टोटल गुडविल हमारे पास कितने की रुपीज़ 6,000 की है. इनको उनके रेशियो में 3:1 के रेशियो में हम लोगों ने ये डिवाइड कर लिया. सो 3,000, 2,000, 1,000. ये बीइंग एक्सिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ. अब स्टूडेंट, ये तो गुडविल होती जो हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी. अब जो क्वेश्चन में हम लोगों को इस टाइम पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब हम लोगों ने जो गुडविल को वैल्यूड किया है, वो गुडविल आपके पास में 34,800. अब ये गुडविल पूरे फर्म की है. ओके, अब हमें इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? इनके गेनिंग रेशियो में. ओके, और इस क्वेश्चन के अंदर ये तो कहीं दे नहीं रखा है आप लोगों को कि जो न्यू पार्टनर के जाने के बाद इनका रेशियो क्या है. तो ऐसे में न्यू पार्टनर के जाने के बाद 3 और 2 ही इनका गेनिंग रेशियो होगा. और ऐसे केस के अंदर ये 3:2 ही इनका न्यू रेशियो है, 3:2 ही इनका गेनिंग रेशियो माना जाएगा. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है, तो ऐसे में जो भी इनका न्यू रेशियो होगा वो इनका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया जाता है. तो अब हम इसकी एंट्रीज पास करेंगे. सो एंट्रीज यू नो वेरी वेल. एंट्री क्या होती है हमारी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अब गेन यहाँ पर हमारे एक्स और वाई. सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट. अब हम अमाउंट निकालेंगे. देखिए, अमाउंट के लिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया हुआ है जी. वर्किंग नोट, फर्स्टली गुडविल ऑफ जेड. हमारे पास टोटल गुडविल दे रखी है 34,800 पूरे फर्म की. इसमें से रेशियो ऑफ जेड इज 1/6, तो 5,800. अब गेनिंग रेशियो के बीच में 3 और 2 ही माना जाएगा. ओके, सो 5,800 टोटल गुडविल है, तो इनको डिवाइड कर देंगे 3/5 एंड 2/5. ओके, सो 5,800 इंटू 3/5, 5,800 इंटू 2/5, तो 3,480, 2,320 एंड टू जेड कैपिटल 5,800. बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू हिम एंड गेनिंग पार्टनर्स डेबिटेड. ओके स्टूडेंट, तो ये तो हम लोगों ने इसका ये फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया
गिव द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम बात करेंगे इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब बनाएंगे स्टूडेंट्स हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप लोगों को यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है बहुत सारी। तो फर्स्टली दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए हम वन बाय वन हम इसकी एडजस्टमेंट को देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको दे रखा है इसमें फर्स्ट देखिए गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, इसमें आता नहीं है। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। देखिए पेटेंट्स जो है हमारे को, हमको क्वेश्चन पेटेंट्स हमको दे रखे इन्होंने 10,000 के, वो कह रहे पेटेंट्स अब हमारे 20% से हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। जब रिड्यूस हो रहे हैं तो हमारी एसेट्स हमारी कम हो रही है। सो टू पेटेंट्स रुपीज 2,000 बिकॉज 10,000 का 20%, ओके 2,000। नेक्स्ट इज प्रोविजन, अच्छा नेक्स्ट इज एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। देखिए मशीनरी वो कह रहा है 90% पर आनी है, हमारे पास मशीनरी ऑलरेडी दे रखी है 50,000 की। अब ये मशीनरी हमारी 90% पर आनी, इट मीन्स हमारी मशीनरी अब 10% से डेप्रिशिएटेड हो रही है। ओके भैया 90% पर आनी ना हमारी ये, तो अब ये 100% है तो उसको 90% पे लेके आओ, इट मीन्स 10% से हमारी वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। तो 50,000 का 10% इट मीन्स ₹5,000। तो एसेट्स हम लोगों ने यहाँ पर कम हो रही है, तो टू मशीनरी ₹5,000। ओके नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 6% ऑन डेटर। देखिए डेटर हमारे पास कितने के 40,000 के, इस डेटर पे हमको 6% का प्रोविजन बना रहा है, तो 6% ऑफ 40,000 ये हमारा निकल के आ जाएगा 2,400। जब हम 40,000 का 6% निकालेंगे तो ये निकल के आ गया हमारा 2,400। 2,000 रुपीज़ ऑलरेडी हमारे पास पहले से प्रोविजन है, तो केवल 400 रुपीज़ का हम प्रोविजन और करेंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ₹400 हमारे यहाँ पर और आ जाएगा। ओके नेक्स्ट इज जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड ने क्या किया, उसने इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ले लिया। देखिए इन्वेस्टमेंट ये रहा हमारे पास, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में बुक वैल्यू तो 15,000 बट उसकी मार्केट वैल्यू 17,600 है, और जेड ने इन्वेस्टमेंट ले ली है। तो देखा जाए तो हमारी तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स अगर हम मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट सेल करते हो हमारे पास 15 से 17,600 हमारी वैल्यू हमारी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, हमको प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा ये बाय इन्वेस्टमेंट ₹2600, 17,600 माइनस 15,600। ओके एंड नेक्स्ट इज लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू बी एक्सटेंड टू ₹750 इज टू बी क्रिएटेड। अब देखिए ऑलरेडी हमारे को जब यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, तो अब हम इस वाली पॉइंट को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड। इट मीन्स अब आपको क्रेडिटर में ₹4,000 पेड नहीं करने, जब नहीं करने हैं तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो बाय क्रेडिटर ₹4,000। ओके और हमारे पास इसमें और इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट इज ये तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की होगी हमारे पास में। अब हमने इसका प्रॉफिट निकाला, तो हमारा एक्चुअल में हमारा डेबिट साइड हमारा को ये ज़्यादा है और क्रेडिट साइड हमारा कम है, तो हमको डिफरेंस में लॉस निकल के आएगा ₹800 का। अब इस 800 के लॉस को हम लोगों ने इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया XYZ, 800 इंटू 3/6, 2/6 एंड 1/6, so 400, 267 एंड 133। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने इसका बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके क्लियर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर उन्होंने पहले से इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये हम इसको बुक को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं आगे। ओके अब हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस की। ओके तो हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, ये आपको पता है हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर XYZ। ओके एंड सबसे पहले स्टूडेंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस हमारे पास कितना है इसका 68,000, 32,000, 2,100, पहले हम इसका बैलेंस निकाल दिया। अब नेक्स्ट इज, अब देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर गुडविल दे रखी है, जो हम लोगों ने ये यहाँ पर ये कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब इस गुडविल को इसके रेशियो में हम लोगों ने ये कर दिया, भाई जाने वाले पार्टनर को गुडविल दी जाती है, सो बाय एक्स कैपिटल एंड बाय वाइस कैपिटल 3480 जो हम लोगों ने वहाँ कैलकुलेट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। इसके पार्ट्स में क्या की जाएगी हमारी वो क्रेडिट, और यहाँ पर टू गुडविल ये रहा टू जेड कैपिटल, इनके अकाउंट में उसको हम क्या कर देंगे डेबिट, यहाँ किया जाएगी क्रेडिट और यहाँ किया जाएगा उसको वो डेबिट। नेक्स्ट इज, अब देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दे रखे उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
इस रिजर्व को क्या करेंगे, ओड पार्टनर्स में ओड रेशियो में हम लोग यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोगों ने ये WCR ये हम लोगों ने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज IFR आपको दे रखे हैं उन्होंने, IFR इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हम लोगों ने, ये भी यहाँ पर रिजर्व कर दिया हम लोगों ने। ओके, अब इसे करने के बाद में देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर गुडविल दे रखी है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो पहले यहाँ पर ये हम लोगों ने गुडविल, ये इस गुडविल को हम लोगों ने ओड पार्ट्स में हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब हम लोगों ने इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ये रहा, तो हमें यहाँ पर लॉस आया था, इस लॉस को भी हम लोगों ने यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर दिया, लॉस यहाँ पर आता है। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, इनके ओल्ड रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो में जाएगा हमारा। गुडविल हम लोगों ने यहाँ पर ये कर ही दिया, यहाँ पर इसकी थी हम लोगों ने किया था क्रेडिट और यहाँ पर क्या किया जाए इसके अकॉर्डिंग डेबिट। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपसे ये कहा गया था कि जेड ने इन्वेस्टमेंट लिए थे, जेड टुक इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, जब हमने मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट ले लिए हैं तो उसकी कैपिटल में क्या किया जाएगा, वो डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट जेड कैपिटल के नाम से यहाँ पर डाल दिया। ओके स्टूडेंट, और इसमें हमारे पास और कोई भी आइटम नहीं है। अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। देखिए वो लास्ट में आपसे कहा है कि अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलो 5067, तो हम उसको इमीडिएट पे कर रहे हैं। 50% हम उसको जो बचेगा बैलेंस, जो बैलेंस बचेगा उसका 50% 1 ईयर के बाद और बाकी 50% के लिए हम उसको 3 मंथ का एक ड्राफ्ट दे रहे हैं। तो देखिए अब हम यहाँ निकालेंगे छोटा सा वर्किंग नोट। हम देखेंगे सबसे पहले अमाउंट ड्यू टू जेड कितना आएगा, तो हमने जेड का पहले पूरा टोटल किया, 21,000 प्लस 3480 प्लस 2320 प्लस 1875 प्लस 1000 माइनस इधर यहाँ के एंड हम लोगों ने डेबिट के माइनस कर दिए रुपीज़ 1000 133 875 17,600, यहाँ तक हमारी अमाउंट आ चुकी थी। जब हमने इसके क्रेडिट वे से डेबिट को लेस किया तो हमारा डिफरेंस निकल के आया 10,067। ये अमाउंट हमने एक्चुअल में उसको जेड को देनी थी, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उससे इमीडिएट 50% इमीडिएट हम उसको 5067 पे कर रहे हैं, तो हम लोगों ने लेस अमाउंट 5067 पे कर दी। अब रिमेनिंग बचा कितना हमारा 5000, तो 5067 जो पे करा है तो हमने यहाँ डाल दिया टू बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक, जब हम लोगों ने पे कर दिया, अब इसके बाद में जो रिमेनिंग बचा हमारा कितना 5000, इसका 50% हम उसे 1 ईयर बाद दे रहे हैं और 50% का हम उसको बिल दे रहे हैं। जो 1 ईयर बाद दे रहे हैं इट मीन दैट इज पार्ट ऑफ लोन। ओके ना, वो हो गया हमारा लोन के नाम से आ गया, जेड लोन हो गया। और रिमेनिंग जो बचा हमारा ये 25 ही हो गया हमारा बिल्स पेबल के नाम से हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में हम लोगों ने इन दोनों का बैलेंस निकाल लिया। एक्स का टोटल किया, इसमें हम लोगों ने माइनस किया, ये इसका एक्स का बैलेंस आ गया। वाई का टोटल किया, वाई का माइनस कर दिया, ये वाई का बैलेंस आ गया। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट स्टूडेंट्स की बनेगी हमारी बैलेंस शीट। बिल्कुल सिंपल है बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देख लीजिए, ये आपको देखे उन्होंने ये क्रेडिटर्स, ये 21,000 के हमारे ये क्रेडिटर, ये 21,000 के हम लोगों ने 4,000 माइनस कर दिए जो हम लोगों को अमाउंट ऑफ पे नहीं करनी थी। ओके, नेक्स्ट इज वर्क एंड कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास हमारा आएगा नहीं इसके अंदर हमारे, क्योंकि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारा ये। IFR ये भी नहीं आएगा, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो। कैपिटल अब देखेंगे पहले क्लेम हमारे पास में 750 का क्लेम है जो भी हम लोगों को उसको पे करना है। अमाउंट ड्यू टू पे सेम इज पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। जो हम लोगों ने बिल्स पेबल था हमारा ये BP, जो हमें उसको पे करना था BP, ओके, ये भी हमारा लाइबिलिटी है। 2500 का हमारा क्या हो गया, ये लोन हो गया, लोन हम लोगों ने डाल दिया। रिमेनिंग बच गया हमारा बैलेंस कैरी डाउन एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल, सो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डाल दिया टोटल। एसेट साइड में कैश एट बैंक, देखिए कैश एट बैंक हमारे पास पहले से दे रखा है, कैश कितने का हमारे पास 5750 का, लेकिन कैश के बारे में स्टूडेंट पहले से कैश इतना है हमारे पास, ठीक है। हम लोगों ने 5067 की हमने उसको पेमेंट कर दी है, अब बचा कितना हमारे पास केवल 683। स्टॉक नेक्स्ट हमारा स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक के बारे में कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक हम लोगों ने एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट हमारा डेटर हमारे पास 40,000 का है और डेटर पे हमारा क्या 2000 का प्रोविजन JR 400 का हमारा अलग से आया था ना, तो हमने पूरा 24 माइनस कर दिया 37,600। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारे क्या पर पेटेंट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारे आएंगे नहीं, पेटेंट हम लोगों ने यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर दिया पेटेंट्स। ओके, ये आ गया 10,000 के थे, 2,000 के हमारे पेटेंट्स हमारे रिड्यूस हुए थे, ये निकल के आ गया। एंड लास्ट स्टूडेंट हमारा क्या मशीनरी हमारे पास 50,000 की थी। ओके, अब 50,000 में से हम लोगों ने क्या किया 5,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, बचा हमारा 45,000। लास्ट में क्या टोटल निकाल दिया, दोनों साइड का टोटल पे आपका इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। ये हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट क्वेश्चन है। पहले हम लोगों ने पास किया जनरल एंट्री, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट टू द
रिटायरिंग पार्टनर, ये आपको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस इस बार हटा दिए गए हैं। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी आपको नहीं करना है। तो स्टूडेंट आगे के टॉपिक आपको नहीं करना है, यहीं तक आपका लेसन था। तो इस तरीके से हमारे लेसन 7 जो था हमारा ये, सॉरी लेसन 6 हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इस तरीके से हमारा ये लेसन फिनिश्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर ला। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी।